Hello everyone, welcome back to the channel Learning Style. In this video, we will do our first Java program. Okay, and we will do our first Java program on Notepad. We will see how to code in Java on Notepad, and it will be useful for the beginners if they use the Notepad and command line prompt for Java programming on early basis, because if they will use IDE, then there will be some basic concepts that will not be clear to them, like how to declare the class, how to write public static void main, where Java program save with what extension, and how it compile and run. Okay, so we'll do some basic programs from starting in Notepad and run them on command prompt, and later we will use the IDE. Okay, so let's start with our first Java program as printing hello world statement. We'll see how to write them on Notepad and how it will run on command prompt. And for working the Java program on Notepad, we'll install the JDK Java Development Kit of any version that we have already installed and set the path. And I have made it the videos on both how to install Java and how to set the path. If you haven't seen those videos, then just go through them. Only if the JDK is installed and the path is set, only then the Java program will run on Notepad. So let's start with Java programming Hello World. For this, we will first declare the class in which we will write the code. So let's take class keyword and class name program 1, open curly braces. इसके अंदर जो हमारा पहला स्टेटमेंट आता है वो आता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. ये हमारा मेन मेथड होता है. इसके अंदर जो हमारा आर्ग्यूमेंट जाता है वो स्ट्रिंग एरे जाता है जो फिक्स रहता है. ओपन curly braces and what we want to do, we just want to print the hello world statement. For printing the anything, we write system.out.println. We can use here print or println. Println is used for a new line. If we have multiple statements and want to print them in a separate line, then we use println. Like we use \n in C or C++. As same here we use println for a new line, for printing the statement in new line. But here we are printing only one statement, so we will use only system.out.print. And this we will write hello world. Put semicolon. Now अब हमें ने जो प्रोग्राम किया है उसे हमें सेव करना है. तो जो जावा प्रोग्राम्स हैं हमारे वो किस एक्सटेंशन से सेव होते हैं और क्या कमांड होते हैं उन्हें कंपाइल करने के लिए और रन करने के लिए. लेट्स सी. जो हमारा जावा प्रोग्राम है वो डॉट जावा एक्सटेंशन से सेव होता है और कंपाइल करने के बाद इसकी एक और फाइल जनरेट होती है. वो फाइल हमारी डॉट क्लास नाम से डॉट क्लास एक्सटेंशन नाम से जनरेट होती है. जो डॉट क्लास नाम एक्सटेंशन से जो फाइल हमारी जनरेट होती है उसमें क्या होता है, ये जो हमने जावा प्रोग्राम लिखा ये हमारा कोड जावा बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है जो कि हमारा डॉट क्लास फाइल क्रिएट होती है उसके अंदर होता है. ओके, नाउ लेट्स शो यू हाउ. कंट्रोल सेव. लेट्स सेव ऑन डेस्कटॉप. डेस्कटॉप पे हमने इसे सेव किया ए डॉट जावा एक्सटेंशन से एंड सेव. ये हमारी फाइल डेस्कटॉप पे सेव हो चुकी है. नाउ लेट मी शो यू हाउ. You can see here it is saved here. Okay, now what we want to do, now we want to run and compile this Java program on a command prompt. So first we have to go to the path on which we have saved this file. Means हमें पहले डेस्कटॉप पे जाना, डेस्कटॉप डायरेक्टरी पे जाना पड़ेगा और उसके लिए हम क्या लिखेंगे cd डेस्कटॉप. हम डेस्कटॉप डायरेक्टरी पे चले गए. अब जावा प्रोग्राम को पहले हमें कंपाइल कराना पड़ेगा रन करने से.
इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जावा सी, जिस नेम से हमने फाइल को सेव करा है वो, ए डॉट जावा, एंटर। एज यू कैन सी हमारी जो फाइल है वो कंपाइल हो चुकी है, इसमें कोई एरर नहीं आया है। अब जब फाइल कंपाइल हो चुकी है इसका मतलब ये हमारा जो कोड है वो बाइट कोड में कन्वर्ट हो चुका होगा, मीन्स एक ए डॉट क्लास फाइल हमारी जनरेट हो चुकी होगी। लेट्स सी, एज यू कैन सी हियर हमारी यहाँ पे एक फाइल जनरेट हो गई है प्रोग्राम वन डॉट क्लास नाम से। क्योंकि यहाँ पे प्रोग्राम वन नाम से वो इसलिए जनरेट हुई है क्योंकि जो हमारी क्लास का नेम था वो यहाँ पे प्रोग्राम वन था। हमने फाइल को ए नाम से सेव, ए डॉट जावा नाम से सेव किया है, लेकिन जो हमारी क्लास का नेम था वो तो प्रोग्राम वन था। इसलिए हमारी जो डॉट क्लास फाइल बनती है वो हमेशा क्लास के नेम से बनती है, जिस नेम से हम फाइल सेव कर रहे हैं उस नेम से नहीं बनती। ओके, नाउ अब हमें इसे रन कराना है, तो रन कराने के लिए हम क्या करते हैं, जावा और जो हमारा क्लास का नेम है वो, क्लास का नेम है हमारा प्रोग्राम वन, एंड देन एंटर। तो आपने जैसे देखा इसमें हेलो वर्ड प्रिंट यहाँ पे होके आ गया। तो अब इसमें क्या चीज़ समझने की ज़रूरत है, वो ये समझने की ज़रूरत है जो हमारा जावा प्रोग्राम है जो हम नोटपैड पे लिख रहे हैं, हम उसे किसी भी नेम से सेव कर सकते हैं और उससे हम इसे कंपाइल भी करा सकते हैं। जैसे हमने इसे ए नाम से सेव किया और यहाँ पे हमने जावा सी ए डॉट जावा से इसे कंपाइल करा दिया, ये कोई एरर थ्रो नहीं करेगा। लेकिन अगर हम जब हम इसे रन करते हैं वो हम हमेशा क्लास के नेम से ही रन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने जावा प्रोग्राम वन यूज़ किया और इस फाइल की जो डॉट क्लास फाइल बनेगी वो भी हमेशा क्लास के नेम से ही बनती है, जैसे कि इसमें केस में बनी है प्रोग्राम वन डॉट क्लास। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा हमेशा। और एक चीज़ और है, अभी ये हमारी जो क्लास है इसके आगे हमने कोई मॉडिफायर यूज़ नहीं किया, ये बाय डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर है। ओके, अभी हम जब आगे मॉडिफायर्स के बारे में पढ़ेंगे, जब मैं आपको बताऊंगी कि अगर क्लास को हम पब्लिक कर दें तो ये किस नेम से सेव होगी और कैसे रन करेगी, या इसे हम प्राइवेट प्रोटेक्टेड करते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस जावा बेसिक फर्स्ट प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड, कि कैसे उसे लिखते हैं नोटपैड में, किस एक्सटेंशन से इसे सेव करते हैं, इसे कंपाइल करने के लिए और रन करने के लिए क्या क्या कमांड यूज होते हैं। So I hope you understand it very well. And still, if you have any query, then you can message me in our comment section. Thank you. Have a nice day. And please don't forget to hit the bell icon and like, share, comment, and subscribe. Thank you.